ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24x7 ਪੰਜਾਬ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਅਨਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹਨ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ 9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਨਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਮਤਾ ਸੋਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਤੀਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸੋਦਾ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮਹੇਸ਼ ਸੋਦਾ ਦੀ 9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਚੁਲਬਲੀ ਧੀ ਅਨਾਇਆ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਆਰੀਅਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮਮਤਾ ਸੋਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚੁਰਦਰ ਚੋਟੀ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਗੂ ਝੀਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਜੋ ਕਿ 1400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਖਾਰਦੁੰਗਲਾ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਇਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਨਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਮਮਤਾ ਸੋਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਨਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਅਨਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਅਨਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 14 ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 1 ਜਾਂ 2 दिन तक बदल सकती है। ये शौक हमें तब आया जब हमें पता चला हम मतलब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, उनमें से हमें एक ट्रैकिंग मिली तो हमने उसको चूज कर दिया। तो इस बारे में कैसे पता लगा कि ट्रैकिंग नाम की चीज कोई होती है और आपने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर जाना है? ये किसने आइडिया दिया आपको? एक्चुअली हमारी जो बुआ है वो ऑलरेडी जा चुके हैं माउंट एवरेस्ट। बुआ जी का नाम क्या है? ममता बुआ। अच्छा, जो हरियाणा पुलिस में एसीपी है। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने आपको बताया कि आपको चीयर किया कि आप जाइए वहां पर? हाँ। तो ट्रेनिंग भी ली होगी आपने पहले? ट्रेनिंग हमने बहुत पहले से। ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी? मैंने पहले भी बहुत सारी पिक्स क्लाइंब की है, बट मैंने कभी ट्रैक नहीं किया है भाई, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो आर्यन आप पहले कौन कौन सी चोटी पर जा चुके हो? सबसे पहले आ गया था मेरा क्रो पीक, उसके बाद आ गया चूरछाल, उसके बाद आ गया था एक लेक, पर उसके बाद मैंने लिया था तो याद नहीं है। तो इस सब के लिए ट्रेनिंग कहाँ से लिए? कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना, कुछ कौशल, कुछ टेक्निक्स जो है। टेक्निक्स मैंने सिर्फ मम्मा से सीखी थी। मम्मा का नाम क्या है? ममता सोदा। अच्छा, आर्यन जी की जो बुआ है वो आपकी मम्मा है, ममता सोदा जी। ओके, तो दोनों को मतलब घर से ही ट्रेनिंग मिली है ना? नहीं, मैं तो जिम जाती हूँ। अच्छा, जिम जाते हो अभी से? नहीं, मतलब उसके लिए जिम नहीं, जब पता चला माउंट एवरेस्ट जाना है तो जिम जाना शुरू किया था, शोल्डर वगैरह। अच्छा, पावर के लिए थोड़ा ना, स्ट्रेंथन बॉडी के लिए। ओके, तो अभी कौन सी डेट को फिक्स टाइम वगैरह कुछ तय हुआ है कब जाना? जून नहीं, अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल 30 को हम वहाँ पे निकल जाते हैं। ओके। उससे पहले दिल्ली से निकलना है। दिल्ली आपकी बेस कैंप के लिए चढ़ाई जो है कब से शुरू होगी? हम पहले दिल्ली जाएंगे, उसके बाद हमारी दिल्ली से नेपाल फ्लाइट है, उसके बाद नेपाल से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं दोनों? मैं पढ़ता हूँ कंट्री स्कूल। ये कहाँ पर है? ये है पंचकुला में, DLF वैली में। ओके, एंड आप? मैं सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, एंड लॉर्ड कुरुक्षेत्र में है, लॉर्ड सिटी सेक्टर 9। ओके, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़।
पंचकूला 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 ओके। तो आपको प्रिंसिपल से परमिशन मिल गया स्कूल के कि आप जा सकते हैं? Yes. आपकी उम्र में जैसे चॉकलेट और कैंडीज इन सब का शौक होता है बच्चों को, आपको एवरेस्ट जाने का शौक है, ये कुछ कैसे है? मतलब ये कार्टून वगैरह नहीं देखते हो क्या? नहीं, मैं एनिमे देखता हूँ। अच्छा, उसमें क्या होता है? मतलब जैसे उसके ना एक तो मतलब वो नॉर्मल मूवी जैसा ही होता है पर उसके ना एनिमेशन होता है। ओके, तो वहां से आइडिया आया होगा कि यार चलो हम भी चलते हैं चोटी जैसे पर। मैजिक हो गया और थोड़ी पावर होगी ओके वो। ओके, तो अभी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती फिर इस काम में? नहीं, न्यू सेशन है ना पढ़ाई का? म्यूजिशियन तो न्यू सेशन हो गया। कौन कौन सी क्लास में आप दोनों? मैं फोर्थ में। फोर्थ एंड फिफ्थ। तो कहाँ लीड कौन करेगा? दोनों एक साथ ट्रैक करोगे तो कौन किसको कहेगा कि आप मेरे पीछे रहो, आप मेरे एक्चुअली आगे हम रहो? दोनों लीड कर सकते हैं क्योंकि ये अभी छोटा है, उसको वेन ज्यादा प्रैक्टिस करने से तो अगर ये बोले कुछ तो मान तो शेरपा चूज कर लिया आपने किसको लेके जाना है साथ में? नहीं। हम चलें आपके साथ? चलो अच्छा चलो, ऑल दी बेस्ट आप दोनों को। और कुछ आप हमसे साझा कीजिए, कुछ बातचीत, कुछ क्या करना है क्या नहीं, क्या शौक है, बड़े होकर क्या बनना है कुछ? बड़े हो के पहले दीदी ओके, पहले दीदी से पूछते हैं। मैं जिम्नास्ट बनूंगी Okay. या फिर मैं लॉयर बनूंगी। हाँ, हमें पता लगा जिम्नास्ट कंपटीशन में भी आपका कुछ पार्टिसिपेट किया था और कोई वहां पर विनिंग पोजीशन आई है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मेरा एक कंपटीशन हुआ था पहले अंबाला में जिसमें हमारा मेडल नहीं आया था क्योंकि वहाँ पे 18 प्लस भी थे। तो वो तो खेल महाकुंभ था अंबाला वाला एंड हमने अभी 3rd ब्रॉन्ज मेडल लिया है रोहतक Okay. वाले कंपटीशन में 3rd मेडल। वेरी गुड, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एंटायर बच्चा ये बताओ, फ्यूचर। आजकल के बच्चे जो हैं बर्गर चाउमीन नूडल्स ही खाते हैं, तो आप कुछ ऐसा कुछ खाते हैं क्या? वेट बहुत कम। जिम जाते हो? कितनी देर लगाते हो जिम में? अब 1 घंटा। आधा एक घंटा? 1 घंटा। डाइट प्लान क्या है आप लोग की? हम्म? डाइट प्लान क्या है? खाना क्या खाते हो डेली? तो पूरा रूटीन बताऊं? रूटीन रूटीन यस। मैं उठती हूँ 6:15 फिर मैं कपड़े चेंज वगैरह करके कोई ड्रिंक पी के दूध वगैरह और फिर मैं जॉगिंग और साइकिलिंग पे जाती हूँ एंड मेरी मदर जाते हैं मेरे साथ एंड उसके बाद मैं आके ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड उसके बाद थोड़ी देर मतलब रेस्ट करता है। ओके, चलिए ऐसा एंटायर चलता रहता है रूटीन में। अच्छा, आर्यन, मम्मा की पुरानी पिक्चर्स आपने देखी होंगी जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की थी, तो कुछ वहां से भी थोड़ा सा आया होगा मन में कि हाँ मुझे भी करना है, मम्मा आपसे बड़ा बनना है ना, मैं आपसे छोटी एज में देखना ऊपर चढ़कर, ऐसा कुछ डिस्कशन होता है मम्मा के साथ? ऐसा कोई नहीं होता पर मन में ही चलता रहता है। चलता रहता है, क्या चलता है मन में? जैसे कभी मतलब ऐसा मन करता है जैसे छुट्टी होगी तो मन करता है कि ऐसे कोई भी ट्रैक के ऊपर चला जाओ जो भी खुल रहा है और जा सकते हैं। मतलब एडवेंचर पसंद है एक तरह से, है ना? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। So, मम- अब मैंने इसको देखा है तो एक्चुअली काइंड ऑफ ये मेरी इंस्पिरेशन है। मैं इसके जैसा होना चाहती हूँ। ओके, मतलब जैसे ही ट्रैक करता हूँ मुझे पसंद है ना? एक ही चॉइस होगी दोनों की, Adventure। और दोनों ने इसी वजह से एक साथ जाने का जो है किया, है ना? तो अभी आफ्टर 30th आपकी शुरू हो जाएगी, है ना, वहां पर जो, और फिर अब वापसी कब है? आप कितने दिनों में पूरी कर लोगे? हमें पता लगा है 14 से 16 दिन का समय लगता है। आप उससे पहले करना चाहोगे, आराम से कर रहे, एंजॉय करते करते करोगे? आराम से करेंगे। एंजॉय करते करते, चॉकलेट खाते खाते? नहीं मतलब ऐसा होगा कि 14 डेज लगेंगे पर हम उससे ज्यादा लेंगे ताकि हम वहाँ पे थोड़ा एंजॉय भी कर सकें, Okay। एक्सप्लोर भी। यानी कि कंफर्ट जोन में अपना पूरा करोगे, है ना, टारगेट को? ओके, अगर थोड़ा जल्दी हो गया तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। अच्छा, हाँ जी, कैसी अगर कैसी गड़बड़? जैसे अगर ट्रेन में स्ट्रेन आ गया तो बहुत बुरा होगा वहाँ पे। ओके, तो इस सब की तैयारियां हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या करना है, वो फिर क्या है ना, वो सब कुछ हमने होगा। पूरी लिस्ट बना ली है। अच्छा, जो चीजें ले जानी है वो ले जाएंगे और जो चीजें नहीं ले जानी उस लिस्ट में क्या क्या शामिल है? जैसे जैकेट्स, लोगोस, नहीं मैं पूरा खाता हूँ। क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, मेडिकल हो गया और भी था जैसे हाँ एंटरटेनमेंट उसको गेमिंग भी बोल सकते हैं। बट इतने दिन आप वहां पर रहोगे तो ये जो कार्टून वगैरह, छोटा भीम और ये सब कौन से देखते हो आप फिर? एनिमे देखते हैं Anime, अच्छा। एनिमे में क्या क्या? जैसे एनिमे में देखता हूँ मैं ड्रैगन बॉल, नारुतो, चेनसो मैन। तो वो सब आपको मिस करेंगे, उनका क्या, उनका दिल कैसे लगेगा? कोई बात नहीं, एक्चुअली वो तो फिल्म होता है ना। Okay।
पर एक Okay. बात है, जब मैं सोता हूँ ना तो मेरे को सपने घुस के आ जाते हैं और वो मेरे को सपने में एनीमे दिख जाता है ओहो अच्छा और मैं फोन में भी देख सकता हूँ। तो वहाँ सबसे फेवरेट एनिमेशन कौन सा लगता है? एनीमे सबसे फेवरेट मेरे 3 है। पहला गया ब्लीच, उसके बाद आएगा चेनसो मैन और फिर कौन सा था, नारुतो शिपुडेन और डीमन स्लेयर। 4 है। आप दोनों में से ठंड किसको ज्यादा लगती? वहां पर -8 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ज्यादा भी हो जाता है, 10 डिग्री तक भी हो जाता है माइनस। एटीट्यूड तो 12 पे हो गया था। है ना, हाँ तो फिर उससे अच्छा आप रेडी हो? हाँ। ओके, हम सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर। आपके मदर भी पहले भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया होगा वहाँ के बारे में। बताया है, सीखा भी है मैंने, तो सीख के फिर किया है बाकी सारा मतलब ट्रैक्स सारे ट्रैक्स। चाहते हो मोटिव क्या है आपका इसके पीछे की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली हमारे ना आजकल जो हमारा यूथ है इंडिया के, वो ज्यादा से ज्यादा नशे में है, तो नशे को रोकने के लिए हम इस माउंटेन को क्लाइम कर रहे हैं। जैसे ड्रग्स हो गए, अल्कोहल यूज, तो उसको हम बहुत कम करना। से नो ड्रग्स। हाँ। ओके, तो सारे यूथ को और बाकी सभी को आप ये जो है एक मैसेज देना चाह रहे हो कि आप तो स्पोर्ट्स एडवेंचर चैलेंजिंग या देश का नाम रोशन करने की तरफ आइए, उस चीज से किनारा करके। अगर वो इससे भी नहीं करेगा